بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 7 کلاس، امید کرتی ہوں کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ بچوں، آج ہم نے جو پڑھنا ہے وہ لیکچر نمبر، آج ہمارا لیکچر نمبر 13 ہے، ٹھیک ہے؟ تو آج ہم ایک نیا سبق سٹارٹ کریں گے۔ پہلے ہمارے جو 4 لیکچر تھے وہ ہم نے ایک سبق پڑھا تھا کسان کی دانائی، لیکن آج ہم ایک نظم شروع کرنے لگے ہیں، مسدس حلی سے انتخاب۔ آج ہم اس کی پڑھائی بھی کریں گے اور تشریح بھی، معنی بھی لکھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ دیکھیں بچوں، یہ جو شاعر ہے اس نظم کے، ان کا نام، جو اصل نام ہے وہ ہے الطاف حسین، ان کا تخلص ہے حالی۔ اب تخلص بچوں آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ تخلص کیا ہوتا ہے۔ یہ جو شاعر لوگ ہوتے ہیں یہ اپنا ایک چھوٹا سا نک نیم رکھ لیتے ہیں اپنے اصلی نام کی بجائے، ٹھیک ہے؟ تو وہ جو نک نیم ہوتا ہے وہ تخلص ہوتا ہے۔ یہ اپنے اشعار میں، اپنی نظموں میں پھر وہ نک نیم اپنا استعمال کرتے ہیں، اس کو تخلص کہتے ہیں۔ تو ان کا جو اصل نام تھا الطاف حسین اور تخلص حالی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ان کے بارے میں لکھا یہ ہے کہ تاریخ پیدائش ان کی ہے 1837 اور ان کی وفات ہے 1914 عیسوی، ٹھیک ہے؟ آگے یہ دیکھیں بچوں، اس میں ہم آج کی جو لیکچر ہے اس میں ہم کیا پڑھیں گے، یہ اس کے اہم نکات ہیں۔ اس میں ہم پڑھائی کریں گے، الفاظ معنی کریں گے، تشریح کریں گے اور مختصر سوالات کریں گے، ٹھیک ہے؟ آگے ہے اس کے مقاصد کیا ہے اس نظم کو پڑھنے کے، مسدس کی حیت سے متعارف ہو سکیں، اسلام کی برکات جان سکیں، مسلمانوں کے شاندار ماضی سے آگاہ ہو سکیں، ٹھیک ہے؟ اور آگے یہ دیکھیں بچوں، یہ جو نظم ہے مسدس حالی سے انتخاب، یہ اس نظم کو مسدس اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے ہر مصرے، ہر جو بند ہے اس کے 6 مصرے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس لیے اس کو مسدس کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح یہ شعر کی، یعنی کہ کچھ اصناف ہیں نظم کی، جس کے 4 مصرے ہوتے ہیں اس کو رباعی کہتے ہیں، جس کے 5 ہوتے ہیں اس کو مخمس کہتے ہیں۔ اس لیے یہ جو نظم ہے ہماری مسدس حالی سے انتخاب، اس میں ہر بند کے 6 مصرے ہیں، اس لیے اس کو مسدس کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ جو پہلا مقصد تھا ہمارا، یہ میں اب آپ کو کلیئر کر رہی ہوں کہ اس کا کیا مطلب ہے، ٹھیک ہے؟ آگے جو ہے نمبر 2 پہ، یہ جو نظم ہے، نظم کا اصل نام مد و جزر اسلام ہے، یعنی کہ اسلام کا عروج و زوال۔ یعنی کہ ہم نے دیکھا نا کہ اسلام کے شاندار ماضی سے آگاہ ہو سکیں، مسلمانوں کے شاندار ماضی سے آگاہ ہو سکیں، تو اس کا جو نظم کا جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کا عروج و زوال۔ اس نظم کا اصل نام مد و جزر اسلام ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد یہ دیکھیں بچوں، آج ہم اس کے 2 بند کی تشریح کریں گے، ٹھیک ہے؟ باقی ہم اس کو تھوڑا تھوڑا حصہ کر کے آگے والے لیکچر میں اس کو پڑھیں گے۔ تو اس کے جو 2 بند آج ہم پڑھیں گے وہ یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں۔ گھٹا ایک پہاڑوں سے بتھا کے اٹھی، پڑی 4 سو یک بیک دھوم جس کی، کڑک اور دمک دور دور اس کی پہنچی، جو ٹیگس پہ گرجی تو گنگا پہ برسی، رہے اس سے محروم آبی نہ خاکی، ہری ہو گئی ساری کھیتی خدا کی۔ آگے دوسرا بند ہے، کیا امیوں نے جہاں میں اجالا، ہوا جس سے اسلام کا بول بالا، بتوں کو عرب اور عجم سے نکالا، ہر ایک ڈوبتی ناؤ کو جا سنبھالا، زمانے میں پھیلائی توحید مطلق، لگی آنے گھر گھر سے آواز حق۔ ٹھیک ہے؟ یہ بچوں آگے ہم اس کی تشریح کریں گے۔ تشریح کرنے سے پہلے جو پہلا بند ہم نے پڑھا ہے اس کے اندر جو معنی ہے، مشکل الفاظ ہیں، اس کے معنی ہم یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں، وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں، وہ ان کو کرتے ہیں، پہلے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ گھٹا کالے بادل، بتھا مکہ معظمہ یعنی کہ مکہ کی وادی، 4 سو چاروں طرف، یک بیک اچانک، کڑک گونجدار آواز، دمک چمک روشنی۔ ٹیگس اسپین کا دریا ہے اور اس کا پرانا نام، یہ جو اسپین ہے، ہسپانیہ تھا، ٹھیک ہے بچوں؟ گنگا ہندوستان کا دریا کا نام ہے۔ آبی پانی میں رہنے والے، خاکی خشکی پر رہنے والے،
हरी सरसब्ज व शादाब, खेती, दुनिया। यहाँ पे जो नज़म है इसके अंदर जो शायर का मतलब है खेती से वो पूरी कायनात, पूरी दुनिया है, ठीक है। उम्मी, अच्छा बच्चों ये यहाँ तक जो पहला बंद है उसके मानी है यहाँ तक। पहले हम इसकी तशरीह कर लेते हैं, फिर जब दूसरा बंद करेंगे तो आगे वाले मानी फिर पढ़ लेंगे। तो बच्चों इस नज़म में जो शायर है, कौन शायर है इसके हमने अभी नाम पढ़ा है। शायर का नाम है अल्ताफ हुसैन और उनका तखल्लुस है वो हाली है। तो इस नज़म में मौलाना हाली साहब कहते हैं कि वो अरूज व ज़वाल की दास्तान बयान कर रहे हैं इस्लाम की, कि मक्का की पहाड़ियों से एक ऐसी घटा उठी और देखते ही देखते उसने दुनिया के कोने कोने में बरस कर धूम मचा दी, ठीक है। ये जो सबसे पहला मिसरा हमने पढ़ा था, घटा एक पहाड़ों से बथा के उठी, पड़ी चार सू यक यक धूम जिसकी। इसका मतलब ये है बच्चों कि मक्का मुअज़्ज़मा से इस्लाम की रहमत और बरकत की ऐसी घटा उठी कि उसने तमाम दुनिया को अपनी रहमतों और बरकतों से माला माल कर दिया। रहमत की इस घटा की कड़क, यानी आगे वाला जो मिसरा है अब उसका हम आगे पढ़ते हैं। वो कौन सा मिसरा है? कड़क और दमक दूर दूर उसकी पहुंची, जो टैगिस पे गरजी तो गंगा पे बरसी। तो इसमें आगे वो बयान कर रहे हैं कि ये जो रहमत की घटा जो थी, ये जो मक्का की वादी से उठी थी, उसने आगे उसकी जो कड़क थी, उसकी जो गूंजदार आवाज थी, उसकी जो चमक दमक थी, वो दूर दूर तक फैल गई, ठीक है। इतना फैली कि सारी दुनिया इससे सैराब हो गई। मतलब ये है बच्चों कि जब बारिश होती है तो कोई भी हिस्सा खुशक नहीं रहता, ठीक है। हर जगह पानी पहुंच जाता है, बारिश का जो भी जगह हो वो उससे तर हो जाती है, उससे फैज़याब होती है। तो इसका मतलब भी यही है कि तमाम जो कायनात है, पूरी दुनिया जो है वो इस्लाम की जो घटा उठी, इस्लाम की जो बारिश बरसी उससे फैज़याब हो गई, उससे सैराब हो गई। और ये जो आगे कहते हैं कि ये घटा एक तरफ तो स्पेन के दरिया टैगस पर गरजी और दूसरी तरफ हिंदुस्तान के मशहूर दरिया गंगा पर भी बरसी और इसे अपनी रहमत और बरकत से मालामाल कर दिया। तो यानी इसका मतलब ये है कि ये जो दुनिया के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक हर तरफ इस्लाम का नूर फैल गया, इस्लाम की बरकत से तमाम कायनात मुनव्वर हो गई, ठीक है। आगे है, रहे इससे महरूम आबी न खाकी, हरी हो गई सारी खेती खुदा की, ठीक है। यहाँ पे हमने देखो बच्चों पढ़ा है ना कि आबी का मतलब होता है, आब किसको कहते हैं? पानी को। आबी का मतलब होता है पानी में रहने वाले, खाकी यानी कि खुश्की पर रहने वाले। तो खुश्की पर रहने वालों में हम इंसान भी शामिल हैं और बाकी सारी मखलूक जो है जो अल्लाह ताला ने बनाई है जो खुश्की पर रहती है, ठीक है। तो इस जो ये जो मिसरे हैं, जो शेरा इसमें वो कह रहे हैं, जो हमारे शायर हैं वो कहते हैं कि पूरी दुनिया इस्लाम की और रहमतों से फैज़याब हुई। इस्लाम की रहमत की इस घटा ने किसी को भी महरूम ना किया। इससे पानी पर रहने वाले भी फैज़याब हुए और खुश्की पर रहने वाले भी, तमाम जो लोग थे, तमाम जो मखलूक थी वो इससे फैज़याब हो गई, इससे फ़ायदा उठाया। इस तरह कायनात की खेती यानी कि ये पूरी दुनिया जो थी, जो सूखी थी, वो हरी और सरसब्जो शादाब हो गई। जहाँ जिहालत का दौरा था, तो सूखी का मतलब क्या है कि ये नहीं था कि वो बिल्कुल खुशक थी, ये था मतलब इसका ये है कि जिहालत का दौरा था, किसी को असल जो ज़िंदगी का मकसद है उसका पता नहीं था। लोग मुख्तलिफ जो बुत थे उनकी पूजा करते थे, कोई आग की पूजा करता था, यानी कि खुदा को मानने वाला कोई नहीं था। तो वो यही यहाँ पे उनका मकसद है कि जहाँ जिहालत का दौरा था, अल्लाह ताला की रहमत से पूरी कायनात सरसब्ज़ शादाब हो गई और ज़मीन पर हर तरफ अल्लाह के नाम लेवा पैदा हो गए कि हर तरफ अल्लाह ताला की इबादत होने लगी, जिक्र होने लगा, ठीक है। ये तो बच्चों हमारा जो पहला बंद था उसकी हमने तशरीह की है। अब हम दूसरा बंद है उसकी करते हैं, पढ़ाई भी करेंगे और मानी भी करेंगे और साथ इसकी तशरीह भी। दूसरा बंद है, किया उम्मियों ने जहां में उजाला,
हुआ जिससे इस्लाम का बोलबाला, बुतों को अरब और अजम से निकाला, हर एक डूबती नाव को जा संभाला, जमाने में फैलाई तौहीद मुतलक, लगी आने घर घर से आवाज़ हक हक। ठीक है, तो बच्चों ये देखें यहाँ पे जो पहला बंद हमने किया था उसके मानी यहाँ तक हमने किए थे, उसके आगे जो अब हमने बंद की तशरीह करनी है, यहाँ आगे उसके मानी है उम्मी, अनपढ़, बोलबाला, शोहरत, चर्चा। और इसका मतलब ये भी हो सकता है कि इस्लाम का बुलंद होना, इस्लाम का फैलना, अजम, गैर अरब, नाव, कश्ती, तौहीद मुतलक, खालिस तौहीद, आवाज़ हक यानी कि अल्लाह का जिक्र, सच की आवाज़, अल्लाह, हर तरफ अल्लाह की आवाज़ आने लगी। ठीक है, तो ये इस जो आगे वाला बंद है हमारा दूसरा, उसकी हमने पढ़ाई की है और साथ ये मानी भी किए हैं। तो अब हम इसकी तशरीह करते हैं। इस बंद में जो शायर हैं वो कहते हैं कि अरब के ज़्यादातर लोग जो थे वो अनपढ़ थे, यानी कि पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। उम्मी यानी कि अनपढ़ लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, लेकिन इस्लाम के नूर ने ऐसी रोशनी बख्शी कि इन अनपढ़ लोगों ने सारी दुनिया में इस्लाम की रोशनी फैला दी। उनकी वजह से दुनिया में इस्लाम का मर्तबा बुलंद हुआ, हर तरफ इस्लाम फैल गया, इस्लाम का चर्चा हो गया, इस्लाम ने शोहरत हासिल कर ली, जिसमें हमने इसका मानी लिखा था। ठीक है, बोलबाला होना। मुसलमानों ने इस ज़माने के इन लोगों को अल्लाह ताला का पैगाम दिया जो पहले बुतों की पूजा करते थे। कि किन लोगों को इस्लाम ने पैगाम दिया? मुसलमानों ने, उस ज़माने के लोग थे वो जहाँ पर हर तरफ बुतों की पूजा होती थी। उन्होंने अरब और अजम यानी गैर अरब लोगों को भी बुतों से पाक कर दिया। कि अरब कहते हैं बच्चों जो अरबी लोग हैं ना, अरब ममालिक हैं वो, और गैर अजम जो अरब ममालिक के अलावा बाकी जो सारे लोग हैं उनको गैर अजम कहा जाता है। ठीक है, उनको अजम कहा जाता है यानी गैर अरब लोग, उसमें हम भी शामिल हैं क्योंकि हमारा जो इलाका है ये भी तो अरबी नहीं है ना, इसलिए। तो जो लोग बुराइयों की दलदल में फंसे हुए थे, और कहते हैं कि बुतों को अरब और अजम से निकाला, कि हर तरफ से अरब भी खाली कर दिए और अजम भी, जो लोग अरबी नहीं थे उन वहाँ से भी बुत गायब हो गए और वो भी एक खुदा की इबादत करने लगे। हर एक डूबती नाव को जा संभाला। आगे मतलब ये है कि ये लोग हर तरह की बुराइयों में पड़े हुए थे, उन्हें नेकी के रास्ते पर बुलाया, उनकी जो डूबती हुई कश्ती थी उनको संभाला दिया, और जो इस्लाम था वो उनको बताया कि हमारा मजहब असल क्या है, हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है, दुनिया में आने का हमारा मकसद क्या है। ठीक है, उन लोगों की दुनिया दुरुस्त की और उनकी आखिरत को बेहतर बनाने का भी सामान किया। ज़माने में फैलाई तौहीद मुतलक। बच्चों आपको पहले भी बताया है कि वो लोग बुतों की पूजा करते थे। ठीक है, और उसके अलावा बाज़ लोग तो आग की पूजा करते थे, कोई किसी चीज़ की, चांद सूरज को पूजते थे। तो बाज़ जगह पे तो ऐसे था कि लोगों ने हर काम के लिए अलग अलग बुत बना रखे थे, यानी उनका ख्याल था कि बारिश बरसाने वाला जो खुदा है वो और है, और जो बादल लाता है वो और है, रिज़्क देने वाला और है, पैदा करने वाला और है। और इसी तरह उन्होंने अपने अलग अलग बुत बनाए हुए थे अपने हर काम के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे यह है कि तौहीद मुतलक की खालिस तौहीद फैला दी कि हर चीज़ का खालिक, मालिक, राज़िक अल्लाह ताला है। तो इसका मतलब यही है कि हर ज़माने में फैलाई तौहीद मुतलक कि सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करने लगे लोग। सब ने, तमाम जो लोग बुतों की पूजा करते थे, बुतों की पूजा छोड़ दी, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करने लगे। लगी आने घर घर से आवाज़ हक हक, यानी कि उनको इस तरह इस्लाम की तालीमात से फैज़याब किया उस ज़माने के लोगों ने जो उम्मी थे, जो खुद अनपढ़ थे। ठीक है, लेकिन इस्लाम की रोशनी से वो खुद फैज़याब हुए। फिर उन्होंने आगे जो लोग थे उनको भी फैज़याब किया कि उनकी बदौलत हर घर से तौहीद की सदाएं बुलंद होने लगी और लोग नेकी के रास्ते पर गामज़न हो गए, नेकी के रास्ते पर गामज़न हो गए, यानी कि चलने लगे
اور ہر گھر سے اللہ کا ذکر بلند ہونے لگا کہ لوگ سب صرف اللہ کی عبادت کرنے لگے۔ تو بچوں یہ ہمارے آج 2 بند تھے جس کی ہم نے آج تشریح کرنی تھی۔ اسی 2 بند کے ہم نے معنی بھی کیے ہیں، ٹھیک ہے، اور انہی 2 بند کی ہم نے آج تشریح بھی کی ہے۔ تو آگے تھوڑا سا ہم اس کی مشق کا کام کریں گے کہ مختصر سوالات ہیں۔ یہ دیکھیں بچوں، یہ کچھ نکات لکھے تھے کہ سب سے پہلے ہم نے پڑھائی بھی کی، دوسرا نکات کہ ہم نے الفاظ معنی بھی کیے یہ سارے، اور پھر تیسرا کہ ہم نے تشریح بھی کی، ٹھیک ہے، ساتھ ساتھ معنی بھی کیے، تشریح بھی کی۔ اب ہم یہ چوتھا نکات ہے مختصر سوالات، اب ہم وہ کریں گے۔ تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے کہ یہ جو معنی ہے ان کو ہم ریز کر لیں گے۔ آپ کو چاہیے بچوں کہ آپ ساتھ ساتھ ان کو نوٹ ڈاؤن کرتے جائیں، اپنی کاپی کے اوپر لکھتے جائیں تاکہ آپ کو یاد کرنے میں آسان ہو جائے، ٹھیک ہے، اور پھر تشریح کرنے میں بھی، اس کو سمجھنے میں بھی آسانی ہو جائے۔ آگے جو ہم کریں گے سوال، وہ جو مختصر مشق کے اندر سے ہم نے کرنے ہیں مختصر سوالات، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے جو سوال ہے بچوں، میں سوال صرف پڑھوں گی اور اس کا جواب لکھوں گی یہاں پہ، ٹھیک ہے، کیونکہ اتنا آپ نے سوال جو ہیں وہ سارے اس کے اوپر سے دیکھ لینے ہیں، اپنی بک کے اوپر سے۔ جب بھی آپ کام کرنے بیٹھیں اپنی بک پاس رکھیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ہم کون سا کام کر رہے ہیں، اس طرح آپ کو یاد بھی آسانی سے ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ مختصر سوالات جواب نمبر 1 ہم سب سے پہلے کریں گے۔ سوال پڑھتے ہیں کہ بتا کے پہاڑوں سے گھٹا اٹھنے سے کیا مراد ہے؟ پڑھا تھا نا ہم نے اس کے اندر، تو اس کا جواب بتانا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ مکہ کی وادی سے دین اسلام کی رحمت اور برکت کی گھٹا اٹھی کہ اس نے اب تشریح میں بھی ہم نے کیا ہے یہ، تو اس کا جواب تو بچوں آپ کو لکھنا بھی آسان ہو جائے اگر آپ غور سے سارے معنی یاد کریں گے، تشریح کو سنیں گے تو اس کا معنی آپ کے لیے لکھنا آسان ہو جائے گا۔ برکت کی گھٹا اٹھی کہ اس نے دیکھتے ہی دیکھتے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، یعنی کہ پوری دنیا پر پھیل گئی۔ اور اس کے آگے ہے اللہ، یعنی کیا مطلب ہے اس کا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی صلی اللہ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کو پتہ کہاں پیدا کیا؟ مکہ معظمہ میں پیدا فرمایا۔ کیا مکہ معظمہ میں پیدا فرمایا اور دین اسلام کو قرآن مجید کی صورت میں
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाया। ये तो बात आपको भी पता है ना कि कुरान मजीद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ। अब जवाब नंबर 2 हम करेंगे। सवाल मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ, ठीक है? तो जवाब हम इसका लिख लेंगे। सवाल नंबर 2 है, टेगिस और गंगा कहाँ है? ठीक है, तो अब हम इसका जवाब लिखते हैं। गंगा तो आपको पता है कि आप सुनते रहते हैं, कहाँ पे है? जो टेगिस है ये टेगिस स्पेन का दरिया है और गंगा हिंदुस्तान का मशहूर दरिया है। यह हमारा था सवाल नंबर 2। अब हम करेंगे सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 है, आबी और खाकी से क्या मुराद है? सवाल नंबर 3 क्या है? आबी और खाकी से क्या मुराद है? ये भी हमने मानी बहुत अच्छी तरह किए थे कि आबी का मतलब क्या है और खाकी का मतलब क्या है। ठीक है, वही अब हमने यहां पे जवाब में लिखना है। आप का मतलब, यानी कि यहां पे आपको थोड़ा सा और मैं बता दूं कि आप का मतलब पानी है और खाक का मतलब मिट्टी। ठीक है, तो आबी से मुराद पानी में रहने वाले और खाकी से मुराद खुश्की पर रहने वाले, और इसमें खुश्की पर रहने वालों में इंसान भी शामिल है। ठीक है, और इसमें इंसान भी शामिल हैं। ये जो हमने लिखी है, देखिए बच्चों, ये हम दोबारा एक तो पढ़ लेते हैं। आपका मतलब पानी है और खाक का मतलब मिट्टी। आबी से मुराद पानी में रहने वाले और खाकी से मुराद खुश्की पर रहने वाले, और इसमें इंसान भी शामिल हैं। आगे खुश्की पर रहने वाले, ये बच्चों यहां पे एक लफ्ज और आ सकता है, जानदार। ठीक है, तो आगे इसको कर लेते हैं, और इसमें दोबारा इसको थोड़ा सा यहां से रेज करके लिख लेते हैं। खुश्की पर रहने वाले जानदार और इसमें इंसान भी शामिल है। ठीक है, आगे हम करेंगे। एक सवाल हमारा रह गया है, सवाल नंबर 4। उसका हम जवाब लिख लेते हैं। यहां पे 1 की जगह पे 4 कर लेंगे। ठीक है, आगे हमने जवाब नंबर 4, इनके सवाल जो चौथा है उसको करना है। सवाल है, उम्मियों से कौन लोग मुराद हैं? यह भी मानी में हमने पढ़ा था कि उम्मियों से कौन लोग मुराद है। उम्मी का क्या मानी पढ़ा था? अनपढ़। ठीक है, उम्मियों से मुराद वो लोग हैं जो
पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। उम्मियों से मुराद वो लोग हैं जो पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। ठीक है, और इसके आगे लेकिन उन्होंने क्या किया, वो पढ़ना लिखना नहीं जानते थे लेकिन उन्होंने इस्लाम की बरकत से पूरी दुनिया में अपना नाम पैदा किया। तो ये था सवाल नंबर 4। हमने तशरीह के साथ साथ मश्क के 4 सवाल भी किए हैं। ठीक है, मश्क के 4 सवाल भी किए हैं और इसके साथ हमने आज का जो हमारा लेक्चर है वो इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर जो है वो खत्म होता है। ठीक है, इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर जो है वो खत्म होता है। आप लोगों ने ये बच्चों, ये थोड़ा सा हिंदुस्तान का जो लफ्ज था ये थोड़ा सा इसको गलत लिखा गया है। ठीक है, ये दोबारा इसको हम कर लेते हैं। ठीक है, चले तो बच्चों आज का हमारा लेक्चर खत्म होता है। इसको आपने गौर से सुनना है, मानी भी, और फिर मानी याद करने अच्छी तरह से, ताकि आप तशरीह करने में आपको आसानी हो जाए। और फिर इसको जब आप अपनी लेक्चर सुने तो पेंसिल और कॉपी लेकर बैठे हो, जो आपको बात समझ नहीं आ रही उसको आप लाजमी लिखें कॉपी के ऊपर, और अगले दिन जो आपकी ऑनलाइन क्लास होगी उसमें अपनी टीचर से डिस्कस करें। तो बच्चों अपना ख्याल रखें, नमाज की पाबंदी करें। अल्लाह हाफिज़।